मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या फॉर्मेट होने जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस का, तो इसलिए मैं तो आमतौर से कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो पर्चे लेके ही जाता हूँ, तो क्योंकि यूजीसी वाले पहले पर्चा जमा कराते हैं फिर पैसा देते हैं। Friends, I'm talking about the political journey of Habib Tanvir Saab. His journey was not something of the kind. This is a film made by one of his best friends. His name is M.S. Satyu. The film's name was Kahan Kahan Se Guzar Gaya. So this journey is not like that. Today he was in BJP, then he went to Communist Party, then he went to Congress, then he went to GDP, then he came to TMC. There are enough people here, you know them. So it's not like about Kahan Kahan Se Guzar Gaya. But how did he kind of chart the course of his life? Sometimes he was very politically active, sometimes he was politically passive, sometimes he did not like to make a comment, etc., etc. And then what aroused him to again become politically active, etc. That's the kind of a political journey that I'm talking about. So friends, to explain the political bearings and courage of this theatre director extraordinary, Habib Tanvir Sahab, only one incident is enough. It came to my mind immediately when M.K. Raina Sahab asked me in Bombay a couple of months back to talk about politics of Habib Tanvir. Also, I would like to, Ashokji, talk about this particular incident because it's not very well known. I have not seen it in the books of Anjum or Sudhanwa or others who continuously have been telling us about Habib Tanvir and his life. This particular incident had two big players. Both of them are no more. It had one witness who is still living and present somewhere in this campus. I knew about it because I was a player behind the scenes in a way. In the month of May 2009, someone from Bhopal called me up, and I seriously don't remember the name, and it doesn't matter. He told me the news about Habib Saab's health, who was ailing and admitted to the ICU of a Bhopal hospital. Naturally, I was disturbed. He also told me that apart from his health being of concern, the financial situation was also of concern. And आप सब लोग जानते ही हैं कि एक बार शहंशाह अकबर ने एक डायलॉग बोला था अनारकली से कि अनारकली मेडिकल साइंस तुम्हें मरने नहीं देगी और मेडिकल बिल्स तुम्हें जीने नहीं देंगे. So, situation ऐसी थी, I was naturally disturbed, and I knew all the friends of Habib Sahab, all the fans and the family were doing enough, which I'm sure included you, sir, but still something had to be done. And I firmly believe that the government of Madhya Pradesh should do something for a man who was born in the then Madhya Pradesh. It was not divided into Chhattisgarh and MP till then, and who was a representative of that state, as Ashokji said, about 3 artists from that state. As it happens, I used to know the culture minister of the BJP government at that time. His name was Lakshmikant Sharma. Lakshmikant Sharma knew me because he wanted to make a drama school in Madhya Pradesh, and he had called me. I mean, somebody had suggested my name, so he had called me to meet him. And I went and he point blank asked me that, Mr. Tiwari, अच्छा हुआ तिवारी जी आप आ गए, हिंदी में बोलते थे वो, लेकिन हम लोग कैसे काम कर पाएंगे साथ में, हमारा जमेगा कैसे, हमारा चलेगा कैसे, क्योंकि आप तो लेफ्टिस्ट हैं. तो मैंने उनसे कहा कि yes, I am a leftist and it's too late for me now to change my leftism. But the thing is, आपने मुझे ड्रामा स्कूल बनाने बुलाया है ना, आपने मुझे कोई यहाँ शाखा खोलने के लिए तो बुलाया नहीं है. और ड्रामा स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाना चाहिए ईमानदारी से, वो मैं कहूँगा, वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. We should give a choice to the students. We should teach them the whole political history of this country so that they can make their informed choices. ये बात सुन के उनको अच्छा लगा, और उस दिन से, let me praise him, he did not come in between me and my work. I mean, of course, there was a committee of 2-3 people, but I used to be one of the voices there. And he let me do my thing. And तो मैं क्योंकि उनको जानता था, तो इसलिए मैंने उनको एक फ़ोन किया
उस फ़ोन में मैंने जिन फ्रेंड ने उनसे इंट्रोड्यूस कराया था उनको भी मैंने साथ में रखा और हमने एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात की। तो बोले हम हबीब तनवीर की मदद क्यों करें? हबीब तनवीर ने तो अभी पोंगा पंडित को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चली है हमारी सरकार के और हबीब तनवीर के बीच में, उसके बाद में हम उनकी मदद क्यों करें तिवारी की? मैंने कहा इसलिए करें क्योंकि एक तो ये आपका धर्म है कि आप करें एज अ मिनिस्टर ऑफ अ गवर्नमेंट टुवर्ड्स अ सिटीजन हु हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच टू द नेम ऑफ द स्टेट, और दूसरी बात इसलिए करें कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम होगा। अगले दिन उनका मेरे पास फोन आया कि मैं तिवारी जी 5 लाख का चेक उनको भेज रहा हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी कि आप ऐसा कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट डे उनमें थोड़ा सा लालच आ गया, जो एक मंत्री का लालच था। तो उन्होंने कहा कि मैं भेजने के बजाय स्वयं लेके जाऊंगा, और मैं जाऊंगा तो मेरे साथ कैमरे भी जाएंगे, और यहाँ एक हबीब तनवीर जो हमसे हमेशा रहता रहा उसको मैं एक चेक दे के आऊँगा, एक फ़ोटो खिंचाऊँगा। और वो अस्पताल पहुँच गए, उनके साथ में कैमरे भी पहुँच गए। अब बेचारे डॉक्टर क्या करते, मंत्री आया, प्रोटोकॉल में मंत्री को मिले, उन्होंने बताया कि सर उनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल है लेकिन वो होश में। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, चलिए हमको ले चलिए। उन्होंने कहा लेकिन एक बात मंत्री जी ये भी समझ लीजिए कि आईसीयू में जाना किसी को अलाउड नहीं है, कल आप कैमरे वैमरे लेके आए हैं, तस्वीरें छपेंगी तो वो फिर आपके भी खिलाफ जाएगा कि मंत्री क्या आईसीयू में करने गए थे, आईसीयू में जब रिश्तेदारों को नहीं जाने दिया था तो कैसे जाएंगे वो। तो आप कह दीजिए उनको कि मैं आया। तो डॉक्टर अंदर पहुंचे और उन्होंने जाके कहा उनसे कि उन्होंने नगीन से पहले बात की और उन्होंने नगीन से कहा कि नगीन मंत्री जी आए हैं और कुछ पैसा लेके आए हैं। तो नगीन ने कहा बाबा से पूछिए। बाबा होश में थे, लगा हुआ था मगर फिर भी होश में थे, और हबीब साहब ने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद कर ली। आईसीयू के बेड पे ऐसे हो गए जैसे कि वो बेहोश थे। और नगीन ने कहा कि मैं क्या करूंगी यहाँ। नगीन उठ के बाहर चली गई। अब वो क्या करते, बेचारे की नौकरी जाती, तो वो चेक और मंत्री को और कैमरामैन को लेके अंदर पहुंचे। अंदर बाय द टाइम हबीब साहब, the actor that we know, had gone into a kind of a ICU induced stupor. और उन्होंने हबीब साहब अब देख रहे हैं सब मॉनिटर पे सब ठीक है, लेकिन हबीब साहब कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा गहरे से हो गए होंगे, कुछ और हो गया होगा। हबीब साहब ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब एक ऑलमोस्ट डेड लुकिंग आदमी को चेक देना, लाइक अ सीन फ्रॉम वन ऑफ हिज प्लेस, वो पॉसिबल नहीं था कि वो एक ऑलमोस्ट अधमरे आदमी को, एक बेहोश आदमी को चेक दे के आते हैं और फोटो खींची जा रही है। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता। एंड द मिनिस्टर स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द आईसीयू। बाहर जाके उन्होंने सुपरिटेंडेंट को चेक दे दिया और मैं जा रहा हूँ। वो आए, अपनी गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठ के उन्होंने अगला फ़ोन मुझे किया। क्या तिवारी जी आपने मुझे भेजा और मैं यहाँ पे, मैंने कहा आपने चेक भेजा कि आप खुद गए? बोले नहीं मैं खुद चला गया। मैंने कहा अपने हाथ से दे के आता हूँ, आप लोगों के मित्र हैं वो। मैंने कहा वो तो हैं, तो क्या किया जाए? बोले उन्होंने तो आँख तक नहीं खोली, उनके परिवार के दूसरे लोग थे, उन्होंने भी मुझे, किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया, किसी ने मेरा धन्यवाद नहीं किया, और किसी ने मतलब मैं क्यों गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आपने ये बिल्कुल ठीक बात कही। और पहली बार मैं जब लक्ष्मीकांत शर्मा जी से मिला था, अशोक जी, तो पहले तो उन्होंने मुझ पर शक किया कि आप तो लेफ्टिस्ट हैं। उसके बाद में जैसे ही वो एट पीस हुए तो उन्होंने, क्योंकि मैं उनसे उम्र में बड़ा था और हूँ, तो उन्होंने मेरे पैर छुए बाकायदा, और घर से निकलने के पहले उन्होंने मुझे चांदी में बढ़ा हुआ एक नारियल दिया। और आप तो बड़े, मैंने कहा पैर क्यों छू रहे हैं मंत्री जी? बोले नहीं आप बड़े पंडित हैं, आप बड़े ब्राह्मण हैं, आप 20 विश्वा के और कनौजिया ब्राह्मण हैं, तो आपका मैं पैर छूना तो मेरा बनता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ज़रूर छुइए और आशीर्वाद भी लीजिए। तो जब उन्होंने कहा मुझसे चिड़चिड़ा के कि कैसी फैमिली है, और इन्होंने, किसी ने मेरा एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया, किसी ने मेरा धन्यवाद भी नहीं किया, और मैं सिर्फ आपके कहने से गया था, तो मैंने कहा पंडित जी अब आपने मुझे बड़ा ब्राह्मण कहा है ना? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर एक बात मुझसे भी सुन लीजिए, सिर्फ इतना याद रखिए शर्मा जी, हमेशा याद रखिएगा जो भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। Now that was Habib Tanveer at his defined best, on his deathbed, putting a conceited BJP minister to his place.
and telling a government that thank you but no thanks. If you cannot respect my play, if you cannot respect my work, if you cannot respect my right to perform, then I don't have to do anything. अगर तो आप कर रहे हो, करना है तो करो, ना करना है तो ना करो, लेकिन मैं आँख खोल के तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाऊँ और फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, कुछ भी करूँ, नॉट करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले महीने जून में हबीब साहब चले गए। अब आप पूछेंगे मंत्री जी का क्या हुआ? अगले ही साल व्यापम स्कैम का आप सबने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में, जो सबसे बड़ा स्कैम था जो मामा जी ने किया था। मामा जी कौन है आप पता कीजिए, मुझे पता नहीं। तो मामा जी ने किया था और उसमें मामा जी को और मामी जी को बचाने के लिए किसी को एक को फॉल गाई बनाना था और आदरणीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी को जेल में डाल दिया गया 4 साल बाद। और ये कहा गया कि हम लोग तुम जाओ अभी और बस फिर हम लोग छोड़ा लेंगे। 4 साल बीजेपी उनको भूली रही, उनको जेल में सड़ने दिया। 4 साल बाद जब वो कोर्ट प्रोसेस से निकल के आए तो तब तक उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो चुका था, उनकी सेहत बिगड़ चुकी थी और 2019 में वो भी गुजर गए और यहाँ से ऊपर चले गए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब वहाँ मिलते होंगे 2009 के गए हुए और 2019 के गए हुए आदमी, तो क्या बातें करते होंगे आपस में। ये थे हबीब साहब पॉलिटिकली स्पीकिंग। और ये जो उनका जो पॉलिटिकल जो स्टील था, इसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है। इसकी शुरुआत उनके रायपुर से ही हो जाती है, जहाँ वो लिखते हैं कि रायपुर में मुशायरे होते थे, तरह तरह के शोरा, तरह तरह के पोइट्स वहाँ आते थे। And then there was a program broadcast. He talks about 2 stations which were received in Raipur, were the Delhi station and the Lucknow station, which were both very famous for their mushairas. And some of the names which he remembers and writes in his book are the poets like Majaz, Jafri, Jazbi, Ali Jawad Zaidi, Janisar Akhtar, Faiz, and Mahdum. They all are very famous leftist poets. They all were a part of the PWA, which is the Progressive Writers Association. So it's not for nothing that he remembers these names. और 10-20 नाम लिख देते हो। वो इसमें चाहते तो जोश वाली आबादी का भी नाम लिख सकते थे, लिखते हैं कहीं और लिखते हैं, लेकिन कम से कम उन पोइट्स में नहीं लिखते हैं, क्योंकि जोश भी लखनऊ में अक्सर आते थे, रेडियो में और आके पढ़ते थे। ये सब तो प्री इंडिपेंडेंस की बात है। फिर जब वो आगे नागपुर जाते हैं तो नागपुर कॉलेज का जिक्र करते हुए एक अपने दोस्त का जिक्र करते हैं, के नाम का एक आदमी था, जिसके बारे में लिखते हैं कि बड़ा रंगीन मिजाज आदमी था और बड़ा एक्टिव था, लेकिन क्लास में कभी एक्टिव नहीं रहा, हमेशा क्लास के बाहर एक्टिव रहता था। और वो कुछ पोएम्स लिखा करता था और सुनाता था। उनमें से एक पोएम की 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा आपको। उस जमाने में हिटलर पहने कपड़ा, मुसोलिनी पहने कपड़ी। हिटलर पहने कपड़ा, मुसोलिनी पहने कपड़ी, और हम गरीब बेचारा, कभी नंगा कभी नंगी। हाय हिटलर। हिटलर चढ़े घोड़ा, मुसोलिनी चढ़े घोड़ी, और हम गरीब बेचारा, कभी गधा कभी गधई। हाय हिटलर। अब इसमें मजे की बात क्या है कि इसमें हमने भी बहुत सारी लिमरिक्स सुनी हैं जो हिटलर के बारे में लोगों ने लिखी थी, लेकिन उसमें सिर्फ हिटलर को और हिमलर को और गोएबल्स को नीचा दिखाया जाता था। उसमें किसी में गरीब गुरबा की बात नहीं आती थी। तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी पोएम कि जहाँ हिटलर के और मुसोलिनी के साथ में गरीब गुरबा की भी बात हो रही। तो वरना हमने भी बहुत सुनी कि गोएबल्स हैड ओनली 1 बिग बॉल एंड हिमलर हैड 2 बट वेरी स्मॉल। ये सब हमने भी सुना है, लेकिन उसमें किसी गरीब की बात नहीं हो रही। सॉरी टू बी टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स। उसके बाद में वो एक अपने दोस्त की और बात करते हैं वहां पे। माई फ्रेंड एंड मेंटर कॉमरेड मुश्ताक। Comrade Mushtaq was a strange creature. He was so attached to the Morris College and its trade union activities and to Comrade A.V. Bardhan that he did not want to leave the college, and that's why he kept failing in the same class. अब जो आदमी 11वीं 12वीं में कॉमरेड वर्धन जैसे एक व्यक्ति से मिले जो बाद में चल के सीपीआई का जनरल सेक्रेटरी बनेगा, तो ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, कम से कम हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों में। तो ये भी देखिए आप। उसके बाद में वो जब पहुंचते हैं अलीगढ़ अपना एमए करने के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग जो हैं वो उनको बताया जा चुका है कि एक लड़का आ रहा है जिसका दिमाग बहुत कम्युनिस्टों से मिलता जुलता है, इसको संभाल लो और इसको कम्युनिस्ट बना दो। तो उन्होंने भी अपना काम किया ही होगा इस खत के बाद में, जो हम देखते भी हैं कि कैसे। लेकिन
हबीब साहब में एक बड़ा खिलंदड़ वॉन्डरर भी था, और वो वॉन्डरर एक साल में उनको वहाँ से छुड़ा देता है और ले जाता है बॉम्बे। बॉम्बे में उनकी पॉलिटिकल समझ और चीज़ें जिस तरह से बनती हैं, बॉम्बे में पहले तो वो एक फिल्म में हीरो बनते हैं, लेकिन वो फिल्म somehow it is not released, क्योंकि प्रोड्यूसर में डायरेक्टर में झगड़ा हो जाता है फिल्म कंप्लीट होने के बाद में। दिलीप कुमार साहब के साथ भी एक फिल्म करते हैं, बट तब तक उनको ये बड़ा मैकेनिकल मीडियम लगने लगता है। एक ज़रा सा हुआ शॉट कट, अभी आगे नहीं, अभी आगे कुछ नहीं, परसों होगा आगे। उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। एक आदमी जो था वो थिएटर से पोटी से जुड़ा हुआ था, इसमें कॉन्टीन्यूटी भी होती है, तो उनको पसंद नहीं आया, और वो वहाँ बम्बई में जा कर के PWA के सारे लोगों से उनकी जो वाबस्तगी होती है, उनकी जो दोस्ती होती है, उनकी जो गुर्बत होती है, दैट स्टार्ट्स, एंड देन सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ता है जब वो इप्टा के करीब आते हैं। और एक आदमी जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया है, सिर्फ अंजुम ने अपनी किताब में एक जगह किया है, जो उनका पहला रूममेट था बॉम्बे में, जब वो कहीं चर्च पेड़ के आसपास रहते थे। उनका नाम था MS Sathyu, बिकॉज MS Sathyu इज ऑल्सो नॉट a small director of this country, is not a small designer of this country. लेकिन MS Sathyu का जिक्र कहीं ज़्यादा मुझे किसी भी हबीब साहब की किताब में दिखाई नहीं देता है। हबीब साहब खुद भी अपनी किताब में नहीं लिखते हैं, उसकी कुछ वजह हैं कि शायद वो नहीं चाहते थे कि वो डिटेल में बात करें उस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन वो रिलेशनशिप बड़ी गहरी थी, क्योंकि जब वो बम्बई छोड़ के दिल्ली जाते हैं तो उनके साथ सत्यू भी दिल्ली जाते हैं, और फिर वहाँ भी दोनों रूममेट हैं और दोनों साथ में हैं। तो उनकी इस जर्नी में बहुत MS Sathyu का भी हाथ रहा है, और कम से कम MS Sathyu एक विटनेस रहे हैं जिनको मैंने इस पर्चे को लिखने के पहले काफ़ी उनसे बात की, क्योंकि वो एक ऐसा लगता है मुझे कि उस सोर्स को ज़्यादा खंगाला नहीं गया है। इप्टा के साथ जो कुछ होता है वो तो बहुत ही है। इप्टा वॉज इन इट्स पीक दोज डेज। मैं हबीब साहब के शब्द पढ़ रहा हूँ। We had Balraj Sahani with us in the Hindi section, who acted and directed most of the productions. Deena Gandhi used to be acting in Gujarati, Marathi sections as well as Hindi. इसका कल भी मैंने जिक्र किया था। Prem Dhawan, Shailendra wrote songs. It was a time of great ferment and excitement. We would stage productions in halls, in parks and grounds, on the road, in the narrow verandas of the workers' stalls. It was a great time for IPTA. IPTA blossoms into an all-India movement. Unquote. यहाँ पे इप्टा के साथ काम करते करते उनकी जो पॉलिटिकल समझ और पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है वो अपने उरूज पे पहुंचता है, goes to its zenith, where he goes with IPTA people to all the sorts of bastis and mills and everything, and does his performances, which were all related to the party Hartals and Mitchells and everything. So it was not something, it was only an artistic activity. So वो इप्टा में जिस तरह से उनकी एक पॉलिटिकल थिंकिंग इवॉल्व होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बाद में एक मिचेल निकलता है, ये अब आज़ादी के वक्त तक 48 में एक मिचेल निकलता है जब मोरारजी देसाई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट, विच ऑल्सो इंक्लूडेड गुजरात। तो वो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर जब थे, और इस मिचेल पे बाकायदा गोली चलाई जाती है जिसमें 3-4 लोग मरते हैं। ये कम्युनिस्टों का जुलूस था, और कम्युनिस्टों का जुलूस इसलिए निकाला गया था कि मजदूरों की हालत जो आज़ादी के समय थी उससे और बिगड़ती चली जा रही थी। हबीब साहब एनालाइज करते हैं कि इसका एक वजह वॉर भी थी, कि वॉर की इकॉनमी सडनली वॉर बंद होने के बाद जिस तरह से ड्रॉप करती है, जिस तरह से चीज़ों की डिमांड कम होती है, वरना बहुत सी चीज़ें तो वॉर के हिंदुस्तान से भी बन के जा रही थी, वो भी वजह है। लेकिन कोई भी वजह हो, मजदूर भूखा मर रहा है, और इसके खिलाफ जब इप्टा आवाज़ उठाती है तो सब लोगों को गोली चलाई जाती है, 5-6 लोग मरते हैं, और बहुत से लोगों को, जितनी टॉप लीडरशिप थी इप्टा की, जिनके नाम मैंने पहले भी लिए थे, वो सब बंद कर दी जाती है। और अचानक एक आदमी को, हबीब तनवीर साहब को, यंग हबीब तनवीर हार्डली 24 और समथिंग लाइक दैट, और उनको कहा जाता है तुम आज से इप्टा के सर्वे सर्वा हो, सेक्रेटरी हो, तुम ही सुनाओगे। तो उसी आदमी को नाटक लिखने भी हैं, उसी आदमी को नाटक करने भी हैं, उसी आदमी को रिसोर्सेज भी जुटाने हैं, बाकी सब पार्टी जेल में है, वगैरह वगैरह वगैरह। By this time, if you ask me, Habib Saab had made his mind, and using his words, I was convinced that I had something to say. And what I had to say in aesthetics, in performing arts,
as well as what I have to say socially and politically, the medium was going to be theatre. एक आदमी ने इतना तो तय कर लिया था कि अब मुझे सिनेमा में नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे थिएटर ही करना है। यहाँ से एक और आज़ादी के साथ एक और कंफ्यूजन शुरू होता है। कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, या ये दाग दाग उजाला, ये धुआं धुआं शहर, ये वो मंजिल तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे हम, फैज साहब। तो यहाँ से एक कन्फ्यूजन शुरू होता है, और दूसरा एक तरह का डिवीजन कम्युनिस्ट पार्टी में शुरू होता है, जहाँ की पीसी जोशी वाले लोग, जो कि बहुत ही कल्चरली अवेयर और एक्टिव जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी को, उनकी जगह बीटी रणदिवे आते हैं, एक साहब जिनको ये सब चीज़ों में कोई पर्पस नहीं नज़र आता, एंड द सेंट्रल सेल ऑफ इप्टा इज डिसबैंडेड। यहाँ पे ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग थिंग है हबीब साहब के लिए, और हबीब साहब बम्बई छोड़ना तय कर लेते हैं, और बम्बई छोड़ के वो दिल्ली पहुंचते हैं। उनके साथ उनके रूममेट, ऑफ एंड ऑन रूममेट, क्योंकि हबीब साहब के साथ और भी जगहें थी, के पास और भी जगहें थी रातें गुजारने की, सत्तू साहब के पास नहीं थी। तो ये दोनों दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली पहुंच के इनको ठिकाना मिलता है एलिजाबेथ गौबा के स्कूल में। एलिजाबेथ गौबा एक थी महिला जो कि एक बड़ा स्पेशलिस्ट स्कूल चलाती थी दिल्ली में, और वहाँ जाते ही उनके और हबीब साहब को ड्रामा टीचर बनाती। उस समय 52 में किसी को ड्रामा टीचर अपॉइंट करना स्कूल में, आज तक हम लोग लौट रहे हैं कि ड्रामा टीचर से अपॉइंट करो, और डिज़ाइन टीचर बनाया जाता है MS सत्यू को। और ये दोनों लोग फिर साथ रात रहे हैं वहीं पे एक घर में, शंकर नहीं, इसके हेली रोड के पास में मिसेस गौबा का स्कूल अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा शिफ्ट कर गया कहीं वो दिल्ली में। और उस समय इनके 2 स्टूडेंट्स थे, जिनकी माँ कभी कभी अपने दोनों बच्चों को लेके आती थी, कभी कभी उनको लेने आती थी, और आती थी तो बहुत ही टीचर से भी मिलती थी, सबसे बात करती थी। एक का नाम था राजीव गांधी और एक का नाम था संजय गांधी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफ कोर्स माँ इंदिरा गांधी, जो उस समय कुछ नहीं थी, जो बाद में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनेगी और बाद में, बहुत बाद में जाके फिर प्रधानमंत्री बनेगी, वो उनसे इनकी जान पहचान होती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, यही उनकी पहचान कुदसिया जैदी से होती है, जिनका कल मैंने जिक्र किया था, जो कि हिंदुस्तानी थिएटर बनाने का सपना जिनके पास है। एंड शी हेल्प्स हबीब साहब टू गो टू राडा, एंड फॉर 4 years ही इज गॉन। नाउ एज MS सत्यू टेल्स मी कि दिल्ली में जितना भी वक्त हमने गुजारा, इसमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं था। हम लोग बहुत कुछ करके थक चुके थे मुंबई में, अब यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे हबीब साहब, as his one of the close friends tells me. राडा में भी उस वॉन्डरर का मन नहीं लगता, और फिर वहाँ से चला जाता है जर्मनी, लेकिन chooses to go to Bertolt Brecht Theater, which again is a choice। और चोर चोरी से जाएगा, सीना चोरी से कैसे चला जाएगा, भले वो वहाँ एक्टिव ना रहे वो पॉलिटिकली, लेकिन जाएंगे तो बर्टोल्ट ब्रेख्ट के पास ही। और फिर जब हिंदुस्तानी थिएटर में वो वापस आते हैं 4 साल बाद, मिट्टी की गाड़ी नाटक करते हैं, और पहली बार अपने छत्तीसगढ़ी साथियों को बुला के लाते हैं, कुछ को, सबको नहीं। इसी बात पे थोड़ा सा झगड़ा भी होता है। अब यहाँ पे मॉडर्निटी वाले लोग हैं, चाहे वो कुदसिया जैदी हों चाहे दूसरे लोग हैं, उनके कहते कुछ बात जम नहीं रही है, और इस बात को लेकर के, और हबीब साहब का सपना कुछ और है, और वो कुदसिया जैदी को छोड़ के नया थिएटर बना लेते हैं। तब से नया थिएटर पे कल से बहुत बातें हुई हैं, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और हबीब साहब एक इस समय बड़े सैड नोट पे अपने इतिहास में एक बात लिखते हैं कि BTR was elected, that is P.T. Ranadive was elected the General Secretary of the Communist Party, which meant that culturally inclined P.C. Joshi was sidelined. Gradually the party split into 2 wings, CPI and CPM. To my mind, IPTA movement came ascender from the time when Communist Party got embroiled in the debate about whether we had truly become independent. देश की आज़ादी झूठी है, ये बात जहाँ से ही जो है वो CPM CPI में बंटने लगता है। फिर भी एक थोड़ी सी होप है उनके पास, और हबीब साहब लिखते हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स इन लास्ट 2, at least in 2 states, Kerala and West Bengal, succeeded in electing communist governments. But there were 2 political incidents in 1956
that shook the foundations of entire democratic world. I was in Budapest when USSR made a forcible intervention and ended the democratic rule in Hungary. And Pandit Jawaharlal Nehru's authoritarian intervention led to the dismissal of democratically elected Communist Party government in Kerala. इन चीज़ों से बहुत ही वो डिसअपॉइंटेड हो गए हैं और उनके नाटक भी ज़्यादा सक्सीड नहीं कर रहे हैं और अगले 10 सालों तक का जो अरसा चलता है उसमें वो मुझे, and Sudhanva can always correct me, that's why these conferences are important. Maybe you have the information which I don't have. That he is very, very kind of politically inert. अपने कलाम में वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं नई नई चीज़ें, लेकिन उस समय इतने असॉर्टेड किस्म के नाटक कर रहे हैं. यही वो वक्त है जब वो मॉलियर भी कर रहे हैं और शेक्सपियर भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, छोटे बड़े हर तरह के यूरोपियन प्ले राइट्स कर रहे हैं, इंडियन क्लासिक्स भी कर रहे हैं और बच्चों के साथ बहुत काम कर रहे हैं, कुछ सरकारी संस्थाओं के साथ वर्कशॉप भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन पॉलिटिकली कोई बहुत यहाँ पे वो एक्टिव कम से कम मुझे नज़र नहीं आते हैं. लेकिन जो उनका थिएटर धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है अपने छत्तीसगढ़ी एक्टरों के साथ में, उसके बारे में सुधनवा ने बहुत अच्छी बात कही है कि if there is one theme that runs consistently through all of Habib Saab's creative outputs, this is the celebration of the plebeian, जो आगरा बाजार से शुरू हो चुका था. In between, something very interesting happened. When he was going through this low phase of his life, suddenly Indira Gandhi makes him a member of the Rajya Sabha from 72 to 78. But M.S. Sathu tells me, when I asked him point blank, that what were the subjects on which Habib Saab spoke in the Rajya Sabha, he said, I don't think he spoke in the Rajya Sabha at all, he did speak only once. जो एक कंपलसरी किस्म का पहला भाषण होता है, उसके बाद में वो ना वो बोलते हैं ना वो किसी बिल पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं. और the nominated members in Rajya Sabha do not get opportunity to speak. It is not as if deny. It is that they are not given. So, पहले स्पीच के अलावा भी, I'll tell you, sometimes you can bring in private members' bills. I'll tell you, Shyam Benegal, who was nominated again to Rajya Sabha, brought in a private members' bills about the land acquisition by the government. Javed Akhtar, again, second name, who was again a nominated member, copyright. He brought in a copyright bill. So you can, no, but you can do something. If you are wanting a legislative thing to happen, you might be given an when you are a legislature, if you want to speak about culture and all that, there will be no opportunity. No, but there could be some bill brought and all that. And then another interesting thing is that, I mean, I've just remembered these two names from our community. So there are people from our community who have been able to try and bring some change, whether it gets passed or not, or becomes a law or not, that's secondary. But this looks surprising to me for a man like Habib Tanveer Saab. And this is not, I'm not just trying to be critical in this conference, I also come for the same thing. मैं भी शीश झुकाने आया हूँ. और बाद में चीज़ें बदलती हैं धीरे धीरे. मैं उनमें भी आने वाला हूँ कि किस तरह बदलती हैं. तो डोंट टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म कि मैं कुछ नेगेटिव करने की यहाँ कॉन्फ्रेंस को ध्वस्त करने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ पूरे एक एकेडमिकली इसको रिकॉल. जी राणा साहब. See, after all, without the Prime Minister's yes, nobody can be nominated. होता president के हाथ से है, लेकिन we all know the practicalities of these things. So it was Indira Gandhi, and in my opinion, it was Indira Gandhi's keen eye who was looking at the artists of different kind and putting them at the right places. Whether it was अपने कलकत्ता के डायरेक्टर ऋत्विक घटक, जिनको पूना ले जाती है, despite his alcoholism and everything, despite I mean even a woman like Pupul Jayakar, etc. So they are all artists who are going to make some difference to this country. Whether it's the film school, whether it's the art councils, whether it's the other thing. So there have been people put up by Indira Gandhi. She had a very keen eye for the right kind of people. So I'm not saying that she picked up a chamcha. He was no way a chamcha of Indira Gandhi, but there was a vabastagi between the two of them through the Gauba school, which I talked in the beginning itself. So it didn't have to be कि मैं पहुंच गया वहाँ पे. But perhaps one more thing which makes me very little surprised is
that when the emergency comes, Habib Saab says nothing about the emergency, but perhaps this can be ascribed to the fact that the whole of the CPI, which he was more aligned, was supporting the emergency. So इस चीज़ के लिए मैं उनको बिल्कुल दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि जो उनके दोस्त थे तब तक, बाद में फिर चीज़ें बदलने वाली, वो कम से कम इमरजेंसी का सपोर्ट कर रहे थे। अब दोस्तों, इसके बाद में जैसा कि फिर से सुधनवा साहब को ही कोट कर सकते हैं और अंजुम जी को कोट कर सकते हैं, इन्हीं लोगों से हमको ज्ञान मिला हबीब साहब का, और थोड़ा बहुत हबीब साहब की बायोग्राफी से। जैसा सुधनवा लिखते हैं कि हबीब underwent his second radicalization from mid-80s onwards as the new liberalized economy steamrolled the poor and the rise of the Hindu right threatened to alter the basic structure of Indian democracy. After the demolition of the Babri Masjid, when the Sangh Parivar began targeting Poga, but his Habib Saab's play, which became later on the most performed play of Habib Saab's, the way he faced up those attacks, vicious, physical, and he never considered any kind of a compromise in this whole fight, about which also we will be seeing a film in some time. So there his commitment and courage had become steel. And there, for all the right values which he started and was a little dormant in between, came to the fore. And I give किस तरह से इन लोगों ने 1988 में जो प्ले किया मोटेराम का सत्याग्रह, और किस तरह से हमारे सफदर हाशमी साहब और हबीब साहब करीब आते हैं, तो हबीब साहब को तो सफदर अपना गुरु बनाते हैं, और वो एक मिनट ज़्यादा बोल गया, तो जिस तरह से वो हबीब साहब को अपना गुरु बनाते हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं हबीब साहब को भी सफदर को अपना गुरु बना लेते हैं। उसके बारे में वो कहें या ना कहें, किस क्या संबोधन करें, हाउ ही एड्रेसेस, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। May I stop you here? Just give me 1 minute. Yes, sure. 2 महीने से इन्होंने तैयारी करवाई मेरे गुरु जी। अच्छा चलिए, तो ये मेरा कहना है कि और यहां से लेकर के हबीब साहब, एक नया हबीब हमारे सामने आता है। वो नया हबीब जो शुरू हुआ था एज ए लेफ्टिस्ट, नाउ ही हैज कम टू द फोर, और हर चीज में वो आपको खड़े हुए नजर आते हैं। और विद इन अ ईयर ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन सफदर एंड हबीब साहब, जब सफदर का मर्डर होता है, तो हबीब साहब एक अलग ही आदमी बन चुके हैं, जिसका कल भी जिक्र किया था रैना साहब ने। और 2 जनवरी को अभी सफदर मरे नहीं हैं, लेकिन सफदर का मरना तय है, जिस तरह से उनके ब्रेन पे चोटें की गई हैं और उनके ब्रेन के हिस्से निकल के बाहर आ रहे हैं। और उस दिन हबीब साहब जो बात कहते हैं, अगर यही होना है, अगर ऐसे ही हालात है, तो मैं कहूँगा कि तमाम लोगों को हथियार बंद करो, फिर हम खुद अपनी हिफाजत कर लेंगे। एक निहत्था आदमी, कलाकारों, अभिनेताओं की टोली गुंडों को झुंड का कैसे सामना कर सकती है? वक्त आ गया है, हम सबको हथियार मिलने चाहिए, हम परफॉर्म करेंगे, हमारे पास हमारी बंदूकें होंगी, हम मारेंगे या मारे जाएंगे, पर यह सिलसिला यही खत्म होना चाहिए। ये हबीब तनवीर का जो फायर जो दिखाई देता है। और उसके बाद में फिर पोंगा पंडित को लेकर के, जिस तरह से मैं पहले कह चुका हूं कि कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना वो लड़ते रहे, ये एक नया हबीब तनवीर था। एंड आई कम टू द वेरी लास्ट पैराग्राफ, कि जिसका आपने राणा साहब आपने जिक्र किया कि 71 के इलेक्शन में उन्होंने इंद्र लोक सभा, तो एक तो इंद्र सभा थी और एक इंद्र लोक सभा थी, जिसके शोज किए उन्होंने 40 से ज़्यादा। सुभद्रा जोशी कैंडिडेट थी सीपीआई के लिए, सीपीआई के उनके लिए, और उनको कांग्रेस सपोर्ट, कांग्रेस की कैंडिडेट थी, सीपीआई उनको सपोर्ट कर रही थी। आपने सही बात कही कि उसके लिए उनका क्रिटिसिज्म उस समय हुआ होगा। और एक जगह का जिक्र करते हैं, जब एक तरफ एक ही जगह लास्ट दिन था इलेक्शन का, कैंपेनिंग का, कि इधर जो है वो हबीब साहब का नाटक चल रहा है और उधर अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने अपनी कथा शुरू की थी एक बीजेपी के नेता के साथ, वहीं ख़त्म करना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो दूसरी तरफ भाषण दे रहे हैं, और इनके एक्टरों की ऊंची आवाज़ें वहाँ पहुँचती हैं, और उस मीटिंग से टूट टूट के लोग इधर आने लगते हैं। और he writes, Bulwa and Lalu Ram were singing in sharp, loud musical voices, and the people were going mad watching Madan Lal and Thakur Ram's performances. I realized to my great glee that our actors' voices were reaching to the crowds of Vajpayeeji's meeting, and people were breaking rank
and coming towards us. After all, we had entertainment with us. दोस्तों, वाजपेयी जी भी चले गए और इस साल वाजपेयी जी के भी 100 साल हैं जो 25 दिसंबर को मनाए जाएंगे, एंड आई एम श्योर विद ग्रेट गस्टो मनाए जाएंगे। कोई देश की एकेडमी जिसने रैना साहब की मदद नहीं की इस प्रोग्राम को करने के लिए, वो सबकी सब उस प्रोग्राम में मदद करेंगे। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, दोनों मध्य प्रदेश के भाई, एक ग्वालियर का और एक छत्तीसगढ़ का, एक ही स्टेट के थे और दोनों एक साथ 100 बरस पूरे कर रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि दोनों जब वहां मिलते होंगे तो क्या बातें हों, और शायद कहते होंगे हबीब साहब उनसे कि वाजपेयी जी, यू आर ए पोएट, सो एम आई। आप राइटर हैं, वो तो मैं भी हूं। आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं, वो मैं भी दे लेता हूं। आपको बहुत कविताएं याद हैं, मुझे लाखों शेर याद है। But there is a basic difference between you and me. You give your speeches so that people get entertained. I entertain people so that they can act and change this world. It really needs a change so that Raj Dharma, which you wanted to bring back to this country, comes back. Thank you.